ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁਮੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਤੁਮੜੇ ਜੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਗਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪਕੜ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁਮੜੇ ਜੀ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਧਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਕੋੜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ RSS ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁਮੜੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। तेल तुमड़े जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सो तेल तुमड़े, बातें तो बहुत सारी हम कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन आज का हमारा जो फोकस ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक वार्निंग दी थी एक तरीके से, जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला या किताब निकाली कि अगर कभी हिंदुत्वी ताकतें ज़ोर पकड़ती हैं तो ये काफ़ी उसमें बर्बादी हो सकती है। सो वो बताएं कि वो उनकी आज के जो हम हालात देखते हैं, उनकी जो भविष्यवाणी थी उसकी कसवटी पे कितने खरे उतरते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बाबा साहब आम्बेडकर को आप जान सकते हैं कि वो सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं हिंदुइज्म का और हिंदू सोशल ऑर्डर के। वो तो सभी जानते हैं। ये आज जो उनको मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिशें हो रही है हिंदुत्व ताकतों से, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कोई हिंदुत्व का क्रिटिक हुआ नहीं है। और आपने सही कहा है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो अम्बेडकर की बुक थी, उन्होंने वहाँ पे साफ साफ लिखा है, सावरकर का जिक्र करते हुए, कि जब हिंदू राष्ट्र इसमें आएगा तो ये सबसे बड़ा डिसास्टर होगा इस कंट्री के लिए। सिवा उसके आजकल उनकी बहुत ज़ोर शोर से कोशिशें हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सेप्टनाइज रूप में बताएं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े बेनिफैक्टर थे, हेडगेवार के मित्र थे, गोलवलकर के मित्र थे, RSS के प्रति उनके बहुत प्रशंसापूर्ण उद्गार है, या घर वापसी चाहते थे, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग दैट दे हैव बीन डूइंग। अम्बेडकर इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज सपोर्टर ऑफ दैट। सो ये जो मिस प्रोपेगेंडा है इतने ज़ोर से चल रहा है कि लोग उसमें काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि दलितों के जो भी लीडर्स है, जो भी नोटेबल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लीडर्स है, उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है और एक गुमराह कर रहे हैं दलित जनता को। ये नामुमकिन है कि सारी दलित जनता उनके साइड में जाए, लेकिन एक काफ़ी हद तक उनका इसमें सक्सेस रहा भी है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन में आप देखेंगे तो काफ़ी उनका जो बढ़ोतरी है वोटों में, वो काफ़ी हद तक उस तरह उनको दलितों के वोट मिले होंगे। तो ये जो उनकी पहल है, बिकॉज उनको दे एक्चुअली रिक्वायर दैट इंक्रीमेंटल वोट दलित टू
accomplish their goal of हिंदू राष्ट्र, right? Because वो दिन चले गए जब गोलवलकर वगैरह के दिन चले गए, जब उन्होंने इमेजिन किया था कि देश में हिंदुओं का पोलराइजेशन करके कुछ एक सिविल वॉर की परिस्थितियां पैदा करें और अपनी चीज़ें हासिल करें, लेकिन आगे चलकर उनको लगा कि संविधान का ही रास्ता है और हम पॉलिटिकली कुछ डेंट नहीं कर पाए, तो ये इलेक्टोरली हमको वहां तक जाना होगा। तो इलेक्टोरली जाने का रास्ता यही है कि 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एक्सेट्रा। आज के दिनों में वो तो नामुमकिन सा है और भी, लेकिन जो रीजनल पार्टीज उभर कर आई है और ये सक्सेस हो गए हैं कि कांग्रेस को आप अप्रोक्सीमेटली डिसेमिनेट कर दें, तो और वो बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन को अपनी उम्मीदें जमा चुकी है कि वो किसी तरह अपने इसमें थोड़े से इंक्रीमेंटल वोट्स लाएंगे और लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी ताकतें जमा लेंगे, और जो 2/3 की बात है वो रीजनल पार्टीज को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके वो अपना हिंदू राष्ट्र का जो गोल है वो अपना पा सकते हैं। ये उनका डिज़ाइन है। तो अम्बेडकर उसमें एक काफ़ी अहमियत रखते हैं, बिकॉज अम्बेडकर एक उभर कर आए हैं दलितों के आइकॉन की तरह, और अगर अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट कर सकें तो दलित लोग जो है वो काफ़ी हद तक वहाँ उनका झुकाव रहेगा, बिकॉज अभी कोई उनके लिए ऑप्शंस भी नहीं है। द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑल्सो डेसिमेटेड, so they would naturally try to vote for BJP and make them reach there. तो बड़े जी, जो बाबा साहब ने जो भविष्यवाणी की थी खास तौर पे रिलीजियस मिनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, उसको अगर हम जैसे में नजर आ रहे हैं हालात, उसको पूरा अगर हम मूल्यांकन करना हो अभी जो ताज़ा स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि वो तो बात क्लियर है कि जो उन्होंने प्रोजेक्शन की थी अब तो सच साबित हो ही गई है। अभी जो हालात बने हुए हैं हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, क्या बताना चाहेंगे कि क्या असेसमेंट आपकी कि क्या चल रहा है वहाँ पे इस टाइम पे? माइनॉरिटीज़ के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में भी, ओप्रेस कम्युनिटीज़ के बारे में भी जो दमन है, चाहे वो सरकारी पुलिस की तरफ से हो रहा है या मतलब सरकार के जो ट्रोल्स हैं या उनके समर्थक उनकी तरफ से हो रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उनका पूरा गेम प्लान इसी पे है कि एक हिंदू मेजॉरिटी, वो उनका इमेजिनेशन है कि देर इज समथिंग लाइक ए हिंदू मेजॉरिटी, 85% पीपल आर हिंदूज, एंड वो अगर उनको उनका एक ज़्यादातर हिस्सा भी अगर उनकी तरफ आ जाता है तो उनका ध्येय जो है वो अकम्प्लिश हो सकता है। तो इसके लिए उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो माइनॉरिटीज वोट है उनको अदर करना, meaning the othering the Muslims or Christians or something like that. They tried it on Christian, but then Christian the othering of the Christian or atrocities on Christian etc. could evoke anger in Western world. Okay, and जो उनके हिमायती है तो उन्होंने रियलाइज किया कि इनको टच नहीं करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम जिनको कि डेमोनाइज किया गया वर्ल्ड ओवर as a terror group and all that kind of thing, they could be safely kind of othered. So that is what is happening about Muslims in India. So Muslims are taken for granted that they are terrorists, they are anti-nationals and so on and so forth. बाकी बातें हैं दलितों की। दलित एक फिनोमेना के तौर पे उभर आता है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। तो दलित भी तो माइनॉरिटी है, आदिवासी दूसरी माइनॉरिटीज़ है। ये जो दो तबके हैं, आदिवासियों में तो लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया है, उनको हिंदुआइज करने की कोशिशें एंड ऑल दैट थिंग, एंड काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। एक अम्बेडकरेट दलित, ये जो तबका था वो एक प्रॉब्लमेटिक तबका था उनके लिए। जो दलित है, जो अम्बेडकर को नहीं मानते थे, उन लोगों पे भी हिंदुत्व का प्रभाव रहा ही है शुरू से ही। उन्होंने अपने आप में वो उनको संभाल लिया था। लेकिन अम्बेडकरेट दलित और अम्बेडकर जिनको कि उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने हेट किया करीब 2 दशक तक, उनको जो अपनाने का जो माहौल चला है, वो उनके एक सर संघचालक थे, probably the lowest profile person, बाला साहब देवरस करके, जो गोलवलकर के बाद में आए, उन्होंने ये स्ट्रेटजी तय की कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और बाबा साहब को धीरे धीरे उन्होंने अपना अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, प्रातः स्मरणीय बना दिया, देन सामाजिक समरसता मंच बना दिया, और इस तरह की
पहल उन्होंने उन दिनों से चालू की। 1983 में उन्होंने सामाजिक समरसता मंच, तो ये जो बातें हैं ये उनका एक गेम प्लान सा है। मौजूदा हालात हिंदुस्तान में ये है कि एक तरफ तो दलितों को वो किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके ऊपर में जो एट्रोसिटीज़ है उन पे बहुत सी बढ़ोतरी हो रही है 1990s के तौर पे। और वही हिंदुत्व का काल भी है, न्यू लिबरलिज्म और हिंदुत्व का काल, जो इसमें हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ जो न्यू लिबरलिज्म और हिंदुत्व के रेजोनेंस पैदा करता है, पॉलिटिकल रेजोनेंस, सोशल रेजोनेंस एक्सेट्रा। सो इस हालात के तहत आप देख सकते हैं कि दलितों पे जो एट्रोसिटीज़ है उसमें बहुत सी, मैंने ये दे आर गैलोपिंग फिगर्स, राइट लाइक जो पुलिस नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो करके एक वेबसाइट है, उनकी एक संस्था है जो कि पुलिस के जो रिकॉर्ड्स है, दर्ज किए हुए केसेस है, उनके स्टैटिस्टिक्स को वो लोग ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं रिपोर्ट। ये बहुत अच्छी संस्था है। तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रजिस्टर्ड एट्रोसिटीज़ है उनके नंबर किस तरह बढ़ रहे हैं। मोदी आने के बाद मैं अगर आंकड़े आपको दूं तो 1913 में ये बढ़ के ये देर वॉज ए ग्रेजुअल काइंड ऑफ इंक्रीज इन द एट्रोसिटी नंबर, इट can't be denied. So that was something like 39,000 plus over a year. In 2014 it had reached 47,000. So this kind of increase in the atrocities, on Dalit itself has been happening in India. Daily, on an average, it can be said that more than two Dalits, that's an average figure, and more than 5 Dalit women, when 2 Dalits are murdered, and more than 5 Dalit women on an average are raped every day. हम बात कर रहे हैं कभी वहाँ पे इंडिया में कोई दलित वुमन पे रेप हुआ जो हो रहा होगा। तो ये हालात है दलितों के। लेकिन वो दलित माने दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हिडन अंडर एक्चुअली यूलॉजाइजेशन, पेइंग यूलॉजी टू अम्बेडकर और मोन्यूमेंटलाइजिंग हिज मेमोरीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ गिमिक। तेलतुंबड़े जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने दलितों के बारे में जो बताया है, ये तो हम देखते आ रहे हैं कि दलित कम्युनिटी के साथ स्ट्रक्चरल वायलेंस काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, ढांचागत हिंसा। उसमें चाहे कांग्रेस की हुकूमत भी रही तब भी ये हालात थे। लेकिन जो मैं जानना चाहूँगा कि मोदी की हुकूमत के बाद जो ओपनली एक हिंदुत्व विचारधारा को अपनाए हुए लीडर हैं, या आरएसएस का इस तरह पावर में आना, इसमें खास तौर पे अब क्या लगता है कि जो दलित पे जो एट्रोसिटीज जो हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, और वो उसमें हिंदुत्व के फुटप्रिंट्स कितने मतलब एक्सप्लिसिटली नजर आ रहे हैं? देखिए, डायरेक्टली वो उसको एट्रीब्यूट करना कि वो हिंदुत्व की वजह से है, ये बात शायद कोई ना कह सके। लेकिन इसमें जो ये डायनामिक्स है, हिंदुत्व का डायनामिक्स, उसे समझने की ज़रूरत होती है। ये इस तरह होता है कि जब ये बातें करते हैं हिंदुत्व की, और जो एम्बोल्डनमेंट हो गया है कि 2014 में मोदी के आने के बाद कि हम अभी हिंदू राष्ट्र पाने की इसमें है, और उन्होंने अपने जो काफ़ी मंकी ब्रिगेड हम कहते हैं उनको अनलिश किया है इंडिया में, तो ये उसके मैनिफेस्टेशंस है। तो विलेज में जो कॉन्ट्राडिक्शंस रहे हैं, जो डोमिनेंट कॉन्ट्राडिक्शंस रहे हैं दलित और नॉन दलित में, एक्चुअली ये तो हिस्टोरिकल बातें हैं कि दलित इज़ अ फार्म लेबर एंड रिच फार्मर्स जो कि नॉन दलित है उनको वो दे आर दी एम्प्लॉयर्स ऑफ दी दलित। उसमें एक वेज कॉन्ट्राडिक्शंस रहा है। और ये बातें 60s के ऊपर ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, इसके प्रोसेस के तहत ये कॉन्ट्राडिक्शंस उभर कर आए। कैपिटलिस्ट फार्मिंग क्लास, रिच फार्मर का क्लास इंडिया में पैदा किया गया, वो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने पैदा किया है एसेट्रा, बट सो फार एज हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी स्टैंड्स, इन दोनों में ये रूलिंग क्लासेस की आइडियोलॉजी रही है। ये हिमायती रहे हैं जो आज का जो युग गुट है और आरएसएस को बिलोंग करते हैं, वो उसके हिमायती ज़रूर रहे हैं। उनका एक पूरा
कॉन्क्रीट सा प्लान रहा है कि यहाँ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो कि कांग्रेस ने इस तरह की बातें नहीं की, इतना ही सिर्फ फर्क है। अदरवाइज कांग्रेस भी वही कर रहा था जो हिंदुत्व कर रहा है। ये बड़े जोर से करते हैं, वो छुपे तरह से वो वोटों के लिए उन्होंने भी वही किया है। तो ये जो प्रोसेस चलती आई है उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो आज के माहौल में जब उनको लगा कि हमारा राज है और उन्होंने अभी काफ़ी कुछ जो बातें कहते थे तो खुले आम करने लगे हैं, तो इससे उनके जो हौसले हैं, हिंदू जो नॉन दलित हैं उनके हौसले गाँव में बढ़ गए हैं। और जो भी थोड़ी सी भी असर्टिव बातें दलित करते हैं तो एक्चुअली इट गेट्स मैनिफेस्टेड इनटू एट्रोसिटी। दिस इज द कॉजल काइंड्स ऑफ लिंकेज एक्चुअली कैन बी सीन वेरी क्लियरली इन दिस हैपनिंग, बिकॉज अदरवाइज कोई ये नहीं है। तो एक तरह से तो दलितों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरह उनको सप्रेस करने की, उनका जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो दलित यूथ है उनका जो थोड़ा सा भी रेडिकल वॉइस में बोलने की कोशिश करते हैं उसको सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपको रोहित वेमुला की केस मालूम होगी, ऊना इंसिडेंट भी, ऊना इंसिडेंट जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लड़की को आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया, उसकी अभी भी लड़ाई चालू है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया उसके बारे में कि उन्होंने उसकी कास्ट को ही क्वेश्चन मार्क करा दिया, एंड पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ड्रामा किया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। उसकी माँ जो कि एक इसके स्कॉलरशिप के भरोसे जी रही थी और लेबर थी, और एक उसका भाई छोटा, वो दर बदर एक्चुअली मीनिंग ये कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी तक फैसला कुछ नहीं होता है सिवा पुलिस के कि उन्होंने उनकी एट्रोसिटी के एक्ट के तहत इन लोगों पे केस चलाया। उस केस का कोई मीनिंग देयर इज नो एक्शन बीइंग टेकन। सेकंड इंसिडेंट इज ऑफ कोर्स नूना इंसिडेंट, एंड these are the few incidents which actually come to limelight, but there are n number of incidents. As a human rights activist, I could narrate you about 70 incidents of this kind, the cow related incidents that actually unleash unspeakable atrocities on Dalits. So these things are quite rampant. So एक तरफ बाबा साहब को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, दूसरी तरफ दलित पे एट्रोसिटीज निरंतर जारी हैं। और जैसे ये रोहित वेमुला का मामला या ऊना का मामला, उसमें क्लियरली मतलब उनकी शमूलियत भी नजर आ रही है, yes. संघी फैमिली की। उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है, तो दलित लीडरशिप जो है वो कितनी ऑनेस्ट है इस मामले में, और मतलब डिटरमिन्ड तरीके से इस चैलेंज को ले रही है, या इसको असर्ट कर रही है इसके खिलाफ, या रेजिस्ट कर रही है इसको? Actually, bankruptcy of Dalit leadership basically is causing this problem. दलित लीडरशिप, दलितों का जो आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स है वो करीबन 60s के दशक तक ठीक ठाक अप्रोक्सीमेटली चला। उसके बाद में दलित लीडरशिप बिकेम एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिस्ट। तो जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनमें से जो कुछ भी मिलता है, दे हैव बीन ब्रोकरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित बेसिकली, बिकॉज दलित मूवमेंट में दलितों के जो मटेरियल इश्यूज है उसको कभी भी नहीं लिया गया। और आप अगर हिस्ट्री में जाना चाहें थोड़ा सा, तो बाबा साहब ने अपने जीवन में ही ये रियलाइज किया था कि उन्होंने जो भी कुछ भी किया, बिकॉज ही हैम्पर्ड अपॉन समथिंग लाइक रिप्रेजेंटेशन लॉजिक, कि दलितों में से कुछ पढ़े लिख कर अपने ब्यूरोक्रेटिक नोड को मैन करें तो स्टेट का कुछ कैरेक्टर सॉफन कर सकते हैं दलितों के प्रति, या उनके लिए हालात थोड़े ये कर सकते थे। बाबा साहब का ये रवैया रहा, तो उन्होंने इसी पे उनकी काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा चला गया। और बाबा साहब जब 1953 में या 51 में जब वो कैबिनेट से बाहर रिज़ाइन करके आए, और उनका एक जो फ्रस्ट्रेशन का दौर था 1953 में, उन्होंने अपने ही एक्चुअली स्पोक आउट हिज फ्रस्ट्रेशन सेइंग दैट व्हाटएवर आई हैव डन only benefited a small section of educated Dalit in urban areas, but I could not do anything for my vast masses of people in rural areas, and had asked his unit, the ऐसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक मराठवाड़ा का यूनिट उनको मिलने गया था दिल्ली में, तो उन्होंने उनको कहा था कि कैन यू फेलोज डू समथिंग लाइक
फॉर लैंड फॉर द पीपल। एंड उनके इस प्रॉम्प्ट की वजह से 1953 में पहला लैंड का सत्याग्रह मराठवाड़ा में हुआ, जबकि 1700 पीपल वेर एक्चुअली गॉट themselves imprisoned and all. देन 59 में बाबा साहब जाने के बाद 59 में एक उसी तरह का सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट हुआ दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में खानदेश और मराठवाड़ा रीजन में, और 64-65 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह बना था। तो ये सिवा इन लोग जो मटेरियल डिमांड पे जो लड़ाई, ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसके बावजूद दलितों में कोई भी मटेरियल इश्यूज को लेकर संघर्ष नहीं हुए। तो इसकी वजह से, और इसी वजह से जो 64-65 की बात मैंने की, इसी वजह से रूलिंग क्लासेस ने भी उसका एक स्केयर ले लिया था, और दलितों में भी इसके जो रिफ्लेक्शंस थे कि दलितों जो कुछ अपॉर्चुनिस्ट दलित एलिमेंट्स थे लीडरशिप में, उन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल की बातें करते हैं, लैंड की बातें वगैरह करती है, तो कम्युनिस्ट करते हैं। तो ये जो दादा साहब गायकवाड़ वगैरह है, ये एक्चुअली कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में गए हैं, और कम्युनिस्ट एक्चुअली बाबा साहब कम्युनिस्टों के खिलाफ रहे हैं, तो इसलिए ये अम्बेडकराइट नहीं है। और इस तरह से उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को तबाह कर दिया। बाद में दलित पैंथर उभर कर आई, उसी में भी वही सुर था कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं, इनसे ये होना चाहिए, बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म का रास्ता दिया है। इस तरह से लेकर सारा दलित मूवमेंट को स्प्लिंटर किया गया। तो ये जो स्प्लिंटरिंग रहा है, एक्चुअली वो द अपॉर्चुनिट एलिमेंट ने किया, और इन अपॉर्चुनिट एलिमेंट को ही इसे काफ़ी वो दोहराते रहे कि दलित मूवमेंट को किसी भी तरह ऐसे अपने एब्स्ट्रैक्ट बातों पे उलझाते रहो, अपने मटेरियल इश्यू की बात मत करो। तो इस तरह बाबा साहब, इट एक्चुअली रिड्यूस्ड डाउन टू जस्ट शाउटिंग अम्बेडकर की जय इन अ लाउडर वॉइस, whosoever shouts it louder he is the biggest Ambedkarite around. सो बस वही वो सिंबॉलिक तरह से वो करते रहे। तो इट एक्चुअली कम्स टू दैट विच एवर पार्टी शाउट्स अम्बेडकर की जय जोरों से, दैट बिकम्स एन अम्बेडकराइट पार्टी। सो बीजेपी ने उसी को दोहरा के, उसी को एक्चुअली पकड़ कर सारे दलितों को, अपने दलित लीडर्स को अपने खेमे में ले लिया है। तो आज टुडे हार्डली देयर इज एनी दलित लीडर अराउंड। अम्बेडकर का जो पोता है प्रकाश अम्बेडकर वगैरह, तो वो एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ थिंग, कि वो लोग आसानी से नहीं जा पाए कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ। तो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ डूइंग समथिंग इंडिपेंडेंटली इन एन इलेक्टोरल फ्रेमवर्क एटसेट्रा, along with the third, and trying to create a third force etc. But otherwise there is hardly any move that can be seen among Dalits. आरपीआई खास तौर पे बाबा साहब की अपनी पार्टी, उनके लीडर खुल्लम खुल्ला तौर पे बीजेपी के साथ जा बैठे हैं। या ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है अम्बेडकराइट का झंडा उठाने वालों के ऊपर, जो झंडा बुलंद करने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है? यही बात मैंने कही है कि जो ये झंडा बरदार लोग है आरपीआई के, तो आरपीआई तो कोई एक नहीं है। आरपीआई शुरू से ही उसमें सारे स्प्लिंटर ग्रुप बने हैं, और उसका जो बेसिक स्टांस रहा है सारे ही फैक्शन का, वो अपॉर्चुनिस्टिक रहा है। दे हैव बीन एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर एंड doing the biddings for the mainstream parties. That has been the case. Now, it is not a newer phenomenon. When Congress was in power, also they were directly, indirectly in under their sort of hold and working for them. So that has been the history of RPI. बाबा साहब ने इमेजिन किया था कि आरपीआई की संकल्पना अम्बेडकर की ये थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी रहे, नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कैपिटलिस्ट, इस तरह की कल्पना की थी और उन्होंने लिखा था। लेकिन आरपीआई की फॉर्मेशन उनके देहांत के बाद हुई। 1957 में आरपीआई फॉर्मलाइज हुआ था, एंड बाद में थोड़ी देर तक वो ठीक चला, और उसके बाद में उसकी पूरी हिस्ट्री में इसी तरह की रही है।
तो ये लोग not only that initially they used to argue like okay बाबा साहब आम्बेडकर भी तो क्या नेहरू के कैबिनेट में गए हैं और हम अकेले क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी पावरफुल पार्टी के साथ रह के ही हमने जो उद्देश्य है उसको हासिल कर पाते हैं। इस तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे थे लोग। अभी भी लोग इसी तरह का कवर अप करेंगे कि ओके हम लोग हिंदुत्व के साथ नहीं है वो, लेकिन जो दूसरी पॉलिसीज़ है बीजेपी के हम उसके साथ है। तो हजार रास्ते हैं जिसको कि दलितों को उनके अपने अपने स्टांस को पहचान कर उनको गुमराह कर सकते हैं। तो ये उनका रवैया रहा है। तेलतुंबड़े जी, अभी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं उसको, आयरनी भी कह सकते हैं, उसके कई तरीके से हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। एक सबब है ये वाला कि 6 दिसंबर को जब बाबा साहब की बरसी के मौके पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया 1952 में। तो ये हम बताएं कि जो कॉन्ट्राडिक्शन भी है, जो आयरनी भी है, जो एक कोइंसिडेंस है, इसके पॉलिटिकल मीनिंग क्या है आपके लिए, क्या कन्वे करना चाहेंगे आप? एक बात ठीक से नहीं बोली जा पाएगी, लेकिन उनका कुछ प्लान था कि 6 दिसंबर जो कि एक दिन मनाया जाता है दलितों में, अगर अब बॉम्बे का परिसर लें तो बॉम्बे में जहाँ पे एक चैत्य भूमि है जहाँ पे उनको क्रिमेट किया गया था, और वहाँ पे जो कॉन्ग्रीगेशन होता है उस मेरे ख्याल से वो हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। करीबन 2 मिलियन पीपल, अभी हाल की फिगर्स है कि मोर देन 2 मिलियन पीपल एक्चुअली कॉन्ग्रीगेट देयर every year, and this is actually increasing like anything. With every passing year the संख्या बढ़ती है। तो ये जो माहौल है, और 6 दिसंबर में बहुत सारी जगह हैं जो कि इस तरह के कॉन्ग्रीगेशन बनते रहे हैं, तो इसको एक कुछ तो भी एक एंटीडोट की तरह इस्तेमाल करके उसको डाइवर्ट किया जाए या उसको सप्रेस किया जाए, ये एक उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। ये तो इनोसेंट बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए सिर्फ 6 दिसंबर ही डेट तय करना। तो बट इसका कुछ इससे ज़्यादा ठोस कोई सबूत नहीं है या कुछ कहा नहीं जा पाता। तो 6 दिसंबर उन्होंने इसीलिए चुना होगा कि जो दलितों का जो फोकस है उसको थोड़ा एटलीस्ट डिफ्यूज़ किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, बिकॉज ये जो 6 बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा देने के बाद में वो बहुत सारे जो दलित है, बहुत सारे बैकवर्ड्स है जिन्होंने उसमें पार्ट लिया था, उसको एनिवर्सरी मनाएंगे। वो सारी उनकी प्लान्स कोई फ्रक्टिफाई होती नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बाबरी मस्जिद इसे हिंदुओं ने रियली उसको सेलिब्रेट किया हो, या वो डॉर्मेंट रहा है। उल्टा उसका बूमरैंग ज़्यादा हुआ है। लोगों ने, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको कंडेम नहीं किया है, और जो एनिवर्सरी मनाई जाती है ना कि सेलिब्रेशन की, लाइक या नहीं, रादर the more of a condemnation they actually incur on that particular day. So this has been happening. So it has not been that kind of political success as they might have planned. It's just a surmise. So beyond that probably nothing much can be said. Certainly. तेलतुंबड़े जी, सर मैं एक या दो सवाल आपसे पूछूंगा। बात तो बहुत सारी करने वाली हैं कि जैसे 6 दिसंबर का ही एग्जाम्पल अगर लेकर बात करें, अभी गुजरात फाइल्स नाम की किताब सामने आई है, उसमें ये बात का खुलासा किया गया कि कैसे जो खास तौर पे जो दलित बैकग्राउंड वाले पुलिस ऑफिसर हैं उनको ही यूज़ किया गया मुस्लिम्स के स्टेज एनकाउंटर बनाने के लिए। इसी तरह से जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हुई उसमें भी दलित्स को फुट सोल्जर्स के तौर पे यूज़ किया गया। ये जो एक प्रोसेस चलता आ रहा है कि दलित्स को, जो खुद अप्रेस कम्युनिटी है, उसको यूज़ करके किया जा रहा है दूसरी कम्युनिटीज़ को टेरराइज करने के लिए, माइनॉरिटीज़ को टेरराइज करने के लिए। ये क्या उसी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है कि उसमें दलित्स को साथ में लेके उसको और ब्रॉडनेस बनाया जाए, वो प्रोसेस है, या दो माइनॉरिटीज़ को आपस में लड़ाकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जारी रखने का मंसूबा है? व्हाट आर द डिज़ाइन बेसिकली?
No, they would like to pitch Dalit against Muslim. They have been planning like that, and that is their dream rather. कि because उनकी फूड सोल्जरी करेगा क्यों, कौन? यही निचला तबका करेगा, और कौन करेगा? बिकॉज जब लड़ाई की बात आती है रास्तों में, तो यही निचला तबका अवेलेबल है जो उनकी फूड सोल्जरी करा सकता है. बिकॉज अदरवाइज दे आर क्वाइट ensconced, you know, they are upper caste, they are economically well settled and all those things. Though those people cannot be expected to do all these kinds of things. So like the backward caste उनके जेब में है. आदिवासी उन्होंने काफ़ी हिंदुआइज कर दिया है, और जहाँ जहाँ भी जो पेरिफेरल एरियाज है सिटीज़ की, अर्बन सेंटर्स की, उसको आदिवासी मोबिलाइज कर देते हैं. तो ये तो उनका ये तो फूड सोल्जर बन ही जाते हैं. अहमदाबाद में एक खासियत हो गई थी, और प्रॉब्ली आई माइट बी द बिगेस्ट कल्प्रिट हु हैज़ रिटन द फर्स्ट टाइम that there was participation of Dalits in actually the riots. That was confined to Ahmedabad city, and these riots were actually widespread. Elsewhere it was not. Actually Dalit have saved Muslims families. So वो बातें उजागर नहीं है, because मीडिया को सेंसेशनलाइज चीज़ें पसंद है. और जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था और जिसका स्ट्रेस था, मैं लैमेंटेड रादर पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स इन गुजरात राइट्स. सो उन्होंने ज़्यादा मल्टीपल पीपल एक्चुअली अपलिफ्टेड दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड इट बिकेम ए वाइड स्प्रेड थिंग अफेयर दैट दलित पार्टिसिपेट इन बिग वे, which was not the truth. मे बी ये पैटर्न रहा है, जैसे 84 में भी हुआ था, पैटर्न रहा है कि कोई भी ऐसा काम हो आप करवा लें एक ऐसी कम्युनिटी से जो ऑप्रेस्ड है, जो पुअर है, और बाद में उसको डिमोनाइज करना भी आसान हो जाता है कि ये लोग इन्होंने काम किया, ये जो रहते हैं झुग्गियों में. Exactly. So, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं. Exactly, I said that, and that has been their dream. Actually, Dalit is not an homogeneous thing, but उसके दो actually clear divide देखा जा सकता है. एक Ambedkarite Dalit and non-Ambedkarite Dalit. The Ambedkar was followed by the majority caste among Dalit in every province. They can be defined as Ambedkarite Dalit, and rest of the thing they did not follow Ambedkar. आज के ज़माने में क्या है कि काफ़ी सारे लोग अभी उन्होंने रियलाइज किया अम्बेडकर एज एन आइकॉन, एंड इंक्रीजिंगली देयर इज अ ट्रेंड टू गो टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज द opportunity for BJP to iconize the Ambedkar in a bigger way. But this has been the phenomenon. They have always been pitching something like a backward caste, Dalits, etc. against Muslims. So that has happened. As regards Dalit officers etc. की बात आती है, तो ये एक बड़ा अजीब सा डायनामिक्स है कि दलित ऑफिसर जो होते हैं तो उनका अपना एक इनसिक्योरिटी सी होती है. उनको ज़्यादातर एक्चुअली जो जिम्मेदारी के पद पर होते हैं दलित ऑफिसर, तो उनको एक एंजाइटी होती है कि उनको अपने आप को अबाउ बोर्ड प्रूव करे. दे हैव टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली, दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर टू प्रूव देमसेल्व्स काइंड ऑफ थिंग. And even otherwise they are the more pliable kinds of people, you know, who could be used. So ये बात सोचने की बात है. इस परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा ये सोचने की बात है कि जो बाबा साहब का लॉजिक था कि रिप्रेजेंटेशन दलित कुछ लोग एलिमेंट्स अगर सामने आ जाए तो ये दलितों के जो मासेस है दलितों के, उनको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके बारे में एक सवाल निर्माण होता है. जैसे दलितों के जो बड़ी बड़ी एट्रोसिटीज़ है, मैंने खैरलांजी एक महाराष्ट्र में बड़ी एट्रोसिटी हो गई थी और उसके 2006 में, और उसमें मैंने एक किताब लिखी. अगर आप जानेंगे कि why I wrote it, because that was very actually illustrating in very exemplary way the dynamics of the various forces. There everybody was a Dalit officer. The entire state machinery, a piece of state machinery around Khairlanji incident was manned by Dalit, and till Khairlanji happened. Not only Khairlanji happened, after that, after post Khairlanji, those events actually took place were quite illustrative, because कोई भी everybody almost was a Dalit officer, and still they played a very villain role in the episode. So वो प्रूव करता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक है, it doesn't work that way as it was imagined simplistically. फाइनल क्वेश्चन तेतुमड़े जी के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एट्रीब्यूट किया जाता है बाबा साहब को, वो एक अलग बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना एट्रीब्यूट किया जा सकता, कितना नहीं किया जा सकता.
खुद अम्बेडकर साहब ने भी इतराज़ जाहिर की और एक लास्ट मोमेंट में प्रोसेसली कहा था कि Yes, yes. मैं खुद भी उसको जलाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी स्थिति में है, चाहे उसकी अपनी लिमिटेशन है नहीं है, वो भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कितनी देर लगेगी इस सरकार को उसको चेंज करके ऑफिशियली इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? क्योंकि ये जो बात हम सुनते आ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि अभी कोई दिक्कत है या अभी कुछ बड़ा होने वाला है? व्हाट आर योर थॉट्स? As I imagine, the way of Hindu Rashtra comes through constitution. Now उन्होंने ठान ली है कि और कोई दूसरा चारा नहीं है, electoral path is the path and that is actually being shown variously, you know, जैसे कि appropriation of Dalits and all these things are actually driving that way. They want few something like an incremental vote because last time उन्होंने clear majority पाली है. ये एक unprecedented victory है उनके लिए और उन्हीं इसी वजह से उनके हौसले बढ़े. लेकिन अगर वोट का परसेंटेज देखा जाए तो जस्ट 31% वोट, दे आर स्टिल अवे फ्रॉम दैट. But what happens in the first past the post election kind of system that India has, a small amount of incremental votes also could catapult them to very big numbers in the parliament, right? But 2/3 majority etc., which is required for changing the constitution, probably is a light years away. That may not be seen. The game plan is such that they in 2019 election they बहुत जोर शोर से उन्होंने अपना ये ड्राइव कर लिया है, अपना मन की ब्रिगेड अनलिश किया है ताकि हिंदुओं का पोलराइजेशन और शार्पर हो. तो और उनको 2-4%, 5% भी हिंदू वोट 31 goes up to say 36, 40 etc., which is a dream number for them. अगर वो बन जाता है तो उनको काफ़ी हद तक उनकी मेजॉरिटी आ जाएगी. लोकसभा में इस बार तो थी लेकिन उसके नंबर्स चाहिए होते हैं 2/3 के आसपास में. एंड राज्यसभा इस टर्म में उन्होंने राज्यसभा वाज एक्चुअली हर्डल फॉर देम बिकॉज दे डिड नॉट हैव नंबर्स, सो दे कुड नॉट थिंक ऑफ. नो 2019 जो उन्होंने इस फेज में नहीं कर पाए उसमें अगर नंबर्स बन जाते हैं और राज्यसभा में वो बना पाएंगे बिकॉज इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन स्टेट्स एटसेट्रा दे हैव बीन विनिंग एंड दे वुड गेट दोज नंबर्स. एंड लोकसभा में अगर वो इवन इससे थोड़ा सा बढ़ोतरी पा जाते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट मैनेजिंग द रीजनल पार्टीज. सो इट बिकम्स वेरी वेरी sort of touchable kind of game and they're aiming at 2019 to accomplish this miracle. So what they would, in my assessment, what they would do, and nobody has been speaking like that, but firstly they would actually change the constitution to have a presidential form because all that Einwalk, Einführer, Einreich वो हिटलर की जो थी उन्हीं का भी अपना एक स्लोगन है उसी तरह का. They have been actually dreaming India in that manner. It's a fascist state, etc. What they have been operating is not less than fascism. Actually, Mussolini also might be shamed by what is happening in India today. But they want to formally convert it that way so that structurally India becomes that way. So once they have a unitary control over the regime, then they can accomplish minor things, etc. And there could be, I think, at that point in time, declaring something like a Hindu Rashtra and all that kind of thing, then all the hurdles, all the democratic factors, etc., could be discarded, and whatever they want, that can be then accomplished. Like जो लोग उनका सहमत नहीं है उनको eliminate करना, all those kinds of things. In minor way, it has been happening in India. You do know that they have eliminated many people. But that is, today they stand as a symbolic. Okay? Just Dabholkar या पानसरे या कलबुर्गी या XYZ. इनको मारना, उन लोगों में कुछ ये नहीं था कि वो लोग डेंजर थे वगैरह वगैरह. But they stood for something by which the other vast numbers etc. could be terrorized. But tomorrow what would happen is that all these people could be summarily eliminated. This is the portent that can be seen very clearly. राइट. तेलतुंबड़े जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ. फिर कभी मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. मेहरबानी. एक मिनट है ना, इंट्रोडक्शन दोबारा वो जी पहला हो गई थी. हाँ जी.
ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ। ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਜੀ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਨਾਲ। आओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोग्राम में शामिल करिए। तेल तुंबड़े जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सो तेल तुंबड़े जी, बातें तो बहुत सारी हम कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन आज का हमारा जो फोकस ये है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक वार्निंग दी थी एक तरीके से, जब पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला या किताब निकाली कि अगर कभी हिंदुत्वी ताकतें जोर पकड़ती हैं तो ये काफ़ी उसमें बर्बादी हो सकती है। सो वो बताएं कि वो उनकी आज के जो हम हालात देखते हैं, उनकी जो भविष्यवाणी थी उसकी कसौटी पे कितने खरे उतरते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या बाबा साहब आम्बेडकर को आप जान सकते हैं कि वो सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं हिंदुइज्म का और हिंदू सोशल ऑर्डर के। वो तो सभी जानते हैं। ये आज जो उनको मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश ही हो रही है हिंदुत्व ताकतों से, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कोई हिंदुत्व का क्रिटिक हुआ नहीं है। और आपने सही कहा है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो अम्बेडकर की बुक थी, उन्होंने वहाँ पे साफ साफ लिखा है, सावरकर का जिक्र करते हुए, कि जब हिंदू राष्ट्र इसमें आएगा तो ये सबसे बड़ा डिसास्टर होगा इस कंट्री के लिए। सिवा उसके आजकल उनकी बहुत ज़ोर शोर से कोशिशें हो रही है कि बाबा साहब आम्बेडकर को सेप्टनाइज रूप में बताएं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े बेनिफैक्टर थे, हेडगेवार के मित्र थे, गोलवलकर के मित्र थे, आरएसएस के प्रति उनके बहुत प्रशंसापूर्ण उद्गार है, या घर वापसी चाहते थे, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग। आम्बेडकर इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज सपोर्टर ऑफ दैट। सो ये जो मिस प्रोपेगेंडा है इतने जोर से चल रहा है कि लोग उसमें काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि दलितों के जो भी लीडर्स है, जो भी नोटेबल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लीडर्स है, उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है और एक गुमराह कर रहे हैं दलित जनता को। ये नामुमकिन है कि सारी दलित जनता उनके साइड में जाए, लेकिन एक काफ़ी हद तक उनका इसमें सक्सेस रहा भी है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में आप देखेंगे तो काफ़ी उनका जो बढ़ोतरी है वोटों में, वो काफ़ी हद तक उस तरह उनको दलितों के वोट मिले होंगे। तो ये जो उनकी पहल है, बिकॉज उनको दे एक्चुअली रिक्वायर दैट इंक्रीमेंटल वोट दलित्स टू accomplish their goal of हिंदू राष्ट्र, राइट? बिकॉज वो दिन चले गए जब गोलवलकर वगैरह के दिन चले गए, जब उन्होंने इमेजिन किया था कि देश में हिंदुओं का पोलराइजेशन करके कुछ एक सिविल वॉर की परिस्थितियां पैदा करें और अपनी चीज़ें हासिल करें। लेकिन आगे चलकर उनको लगा कि
संविधान का ही रास्ता है और हम पॉलिटिकली कुछ डेंट नहीं कर पाए, तो ये इलेक्टोरली हमको वहां तक जाना होगा। तो इलेक्टोरली जाने का रास्ता यही है कि 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एक्सेट्रा। आज के दिनों में वो तो नामुमकिन सा है और भी, लेकिन जो रीजनल पार्टीज उभर कर आई है और उन्हें सक्सेस हो गए हैं कि कांग्रेस को आप अप्रोक्सीमेटली डिसेमिनेट कर दें, तो और वो बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन को अपनी उम्मीदें जमा चुकी है कि वो किसी तरह अपने इसमें थोड़े से इंक्रीमेंटल वोट्स लाएंगे और लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी ताकतें जमा लेंगे, और जो 2/3 की बात है वो रीजनल पार्टीज को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके वो अपना हिंदू राष्ट्र का जो गोल है वो अपना पा सकते हैं। ये उनका डिजाइन है। तो अंबेडकर उसमें एक काफी अहमियत रखते हैं, बिकॉज अंबेडकर एक उभर कर आए हैं दलितों के आइकॉन की तरह, और अगर अंबेडकर को अप्रोप्रिएट कर सके तो दलित लोग जो है वो काफी हद तक वहाँ उनका झुकाव रहेगा, बिकॉज अभी कोई उनके लिए ऑप्शंस भी नहीं है। द अल्टरनेटिव ऑप्शन आल्सो इज डेसिमेटेड, so they would naturally try to vote for BJP and make them reach there. तेलतुंबड़े जी, जो बाबा साहब ने जो भविष्यवाणी की थी खासतौर पे रिलीजियस मिनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, उसको अगर हम जैसे में नजर आ रहे हैं हालात, उसको पूरा अगर हम मूल्यांकन करना हो अभी जो ताज़ा स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि वो तो बात क्लियर है कि जो उन्होंने प्रोजेक्शन की थी अब तो सच साबित हो ही गई है। अभी जो हालात बने हुए हैं हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, क्या बताना चाहेंगे कि क्या असेसमेंट आपकी कि क्या चल रहा है वहाँ पे इस टाइम पे? माइनॉरिटीज के बारे में भी, ओप्रेस कम्युनिटीज के बारे में भी जो दमन है, चाहे वो सरकारी पुलिस की तरफ से हो रहा है या मतलब सरकार के जो ट्रोल्स हैं या उनके समर्थक उनकी तरफ से हो रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उनका पूरा गेम प्लान इसी में है कि एक हिंदू मेजोरिटी हो, उनका इमेजिनेशन है कि देयर इज समथिंग लाइक ए हिंदू मेजोरिटी, 80% पीपल आर हिंदूज, एंड अगर उनको उनका एक ज़्यादातर हिस्सा भी अगर उनकी तरफ आ जाता है तो उनका ध्येय जो है वो अकम्प्लिश हो सकता है। तो इसके लिए उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो माइनॉरिटी वोट है उनको अदर करना, meaning the othering the Muslims or Christians or something like that. They tried it on Christian, but then Christian the othering of the Christian or the atrocities on Christian etc. could evoke anger in Western world. Okay, and जो उनके हिमायती है तो उन्होंने रियलाइज किया कि इनको टच नहीं करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम जिनको कि डेमोनाइज किया गया वर्ल्ड ओवर, the terror group and all that kind of thing, they could be safely kind of othered. So that is what is happening about Muslims in India. So Muslims are taken for granted that they are terrorists, they are anti-nationals and so on and so forth. बाकी बातें हैं दलितों की। दलित एक फिनोमिना के तौर पे उभर आता है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। तो दलित भी तो माइनॉरिटी है, आदिवासी दूसरी माइनॉरिटी है। ये जो दो तबके हैं, आदिवासियों में तो लोग काफी दिनों से काम कर रहे हैं, काफी अरसा हो गया है, उनको हिंदुआइज करने की कोशिश है एंड ऑल दैट थिंग, एंड काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। एक अंबेडकर एक दलित, ये जो तबका था वो एक प्रॉब्लमेटिक तबका था उनके लिए। जो दलित है जो अंबेडकर को नहीं मानते थे, उन लोगों पे भी हिंदुत्व का प्रभाव रहा ही है शुरू से ही, उन्होंने अपने आप में वो उसको संभाल लिया था। लेकिन अंबेडकर एक दलित, और अंबेडकर जिनको कि उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने हेट किया करीब 2 दशक तक, उनको जो अपनाने का जो माहौल चला है, वो उनके एक सर संघ चालक थे, probably the lowest profile person, बाला साहब देवरस करके जो गोलवल करके बाद में आए, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी तय की कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, और बाबा साहब को धीरे धीरे उन्होंने अपना अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। प्रातस्मरणीय बना दिया, देन सामाजिक समरसता मंच बना दिया, और इस तरह की पहल उन्होंने उन दिनों से चालू की। 1983 में उन्होंने सामाजिक समरसता मंच। तो ये जो बातें हैं ये उनका एक गेम प्लान से है। मौजूदा हालात हिंदुस्तान में ये है कि एक तरफ तो दलितों को वो किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके ऊपर में जो एट्रोसिटीज है उन पे बहुत सी बढ़ोतरी हो रही है।
1990s के तौर पे, और वही हिंदुत्व का काल भी है, न्यू लिबरलिज्म और हिंदुत्व का काल, जो इसमें हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ जो न्यू लिबरलिज्म और हिंदुत्व के रेजोनेंस पैदा करता है, पॉलिटिकल रेजोनेंस, सोशल रेजोनेंस एक्सेट्रा। सो इस हालात के तहत आप देख सकते हैं कि दलितों पे जो एट्रोसिटीज है बहुत सी, मैंने गैलोपिंग फिगर्स, राइट, लाइक तो पुलिस नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो करके एक वेबसाइट है, उनकी एक संस्था है जो कि पुलिस के जो रिकॉर्ड्स है, दर्ज किए हुए केसेस है, उनके स्टैटिस्टिक्स को वो लोग ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं रिपोर्ट। ये बहुत अच्छी संस्था है। तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रजिस्टर्ड एट्रोसिटीज है उनके नंबर किस तरह बढ़ रहे हैं। मोदी आने के बाद मैं अगर आंकड़े आपको दूं तो 1913 में ये बढ़ के ये देयर वाज अ ग्रेजुअल काइंड ऑफ इंक्रीज इन द एट्रोसिटी नंबर, इट कांट बी डिनाइड। सो दैट वाज समथिंग लाइक 39,000 plus over a year. In 2014 it had reached 47,000. So this kind of increase in the atrocities, on Dalit itself has been happening in India. Daily, on an average, it can be said that more than two Dalits, that's an average figure, and more than 5 Dalit women, when 2 Dalits are murdered, and more than 5 Dalit women on an average are raped every day. हम बात कर रहे हैं कभी वहाँ पे इंडिया में कोई दलित वुमन पे रेप हुआ जो हो रहा होगा। तो ये हालात है दलितों के, लेकिन वो दलित माने this kind of things are hidden under actually eulogization, paying eulogy to Ambedkar or monumentalizing his memories and all kinds of gimmick. तेज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने दलितों के बारे में जो बताया है, ये तो हम देखते आ रहे हैं कि दलित कम्युनिटी के साथ स्ट्रक्चरल वायलेंस काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, ढांचागत हिंसा। उसमें चाहे कांग्रेस की हुकूमत भी रही तब भी ये हालात थे। लेकिन जो मैं जानना चाहूँगा कि मोदी की हुकूमत आने के बाद जो ओपनली एक हिंदुत्व विचारधारा को अपनाए हुए लीडर हैं, या आरएसएस का इस तरह पावर में आना, इसमें खास तौर पे अब क्या लगता है कि जो दलित पे जो एट्रोसिटीज जो हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, और वो उसमें हिंदुत्व के फुटप्रिंट्स कितने मतलब एक्सप्लिसिटली नजर आ रहे हैं? देखिए, डायरेक्टली वो उसको एट्रीब्यूट करना कि वो हिंदुत्व की वजह से है, ये बात शायद कोई ना कह सके। लेकिन इसमें जो ये डायनामिक्स है, हिंदुत्व का डायनामिक्स, उसको समझने की जरूरत होती है। ये इस तरह होता है कि जब ये बातें करते हैं हिंदुत्व की, और जो एम्बोल्डनमेंट हो गया है कि 2014 में मोदी के आने के बाद कि हम अभी हिंदू राष्ट्र पाने की इसमें है, और उन्होंने अपने जो काफ़ी मंकी ब्रिगेड हम कहते हैं उनको अनलिश किया है इंडिया में, तो ये उसके मैनिफेस्टेशंस है। तो विलेज में जो कॉन्ट्राडिक्शंस रहे, जो डोमिनेंट कॉन्ट्राडिक्शंस रहे दलित और नॉन दलित में, एक्चुअली ये तो हिस्टोरिकल बातें हैं कि दलित इज अ फार्म लेबर एंड रिच फार्मर्स जो कि नॉन दलित है, उनको वो दे आर दी एम्प्लॉयर्स ऑफ द दलित। उसमें एक वेज कॉन्ट्राडिक्शंस रहा है। और ये बातें 60s के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, इसकी प्रोसेस के तहत ये कॉन्ट्राडिक्शन उभर कर आए। कैपिटलिस्ट फार्मिंग क्लास, रिच फार्मर का क्लास इंडिया में पैदा किया गया, वो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने पैदा किया है एसेट्रा। बट सो फार एज हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी स्टैंड्स, इन दोनों में ये रूलिंग क्लासेस की आइडियोलॉजी रही है। ये हिमायती रहे हैं जो आज का जो गुट है और आरएसएस को बिलोंग करते हैं, वो उसके हिमायती जरूर रहे हैं। उनका एक पूरा कॉन्क्रीट सा प्लान रहा है कि यहाँ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो कि कांग्रेस ने इस तरह की बातें नहीं की। इतना ही सिर्फ फर्क है, अदरवाइज कांग्रेस भी वही कर रहा था जो हिंदुत्व कर रहा है। ये बड़े जोर से करते हैं, वो छुपे तरह से वो वोटों के लिए उन्होंने भी वही किया है। तो ये जो प्रोसेस चलती आई है उसको समझने की जरूरत है। तो ये जो आज के माहौल में जब उनको लगा कि हमारा राज है
और उन्होंने अभी काफ़ी कुछ जो बातें कहते थे तो खुले आम करने लगे हैं। तो इससे उनके जो हौसले हैं, हिंदू जो नॉन दलित है उनके हौसले गाँव में बढ़ गए हैं। और जो भी थोड़ी सी भी असर्टिव बातें दलित करते हैं तो एक्चुअली इट गेट्स मैनिफेस्टेड इनटू एट्रोसिटी। दिस इज द कॉजल काइंड्स ऑफ लिंकेज एक्चुअली कैन बी सीन वेरी क्लियरली इन दिस हैपनिंग, बिकॉज अदरवाइज कोई ये नहीं है। तो एक तरह से तो दलितों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरह उनको सप्रेस करने की, उनका जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो दलित यूथ है उनका जो थोड़ा सा भी रेडिकल वॉइस में बोलने की कोशिश करते हैं उसको सप्रेस करते हैं। जैसे कि अपना आपको रोहित वेमुला की केस मालूम होगी, ऊना इंसिडेंट भी, ऊना इंसिडेंट जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लड़की को आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया। उसकी अभी भी लड़ाई चालू है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया उसके बारे में कि उन्होंने उसकी कास्ट को ही क्वेश्चन मार्क करा दिया एंड पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ड्रामा किया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। उसकी माँ जो कि एक इसके स्कॉलरशिप के भरोसे जी रही थी और लेबर थी, और एक उसका भाई छोटा, वो दर बदर एक्चुअली मीनिंग ये कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी तक फैसला कुछ नहीं होता है सिवा पुलिस के कि उन्होंने उनकी एट्रोसिटी के एक्ट के तहत इन लोगों पे केस चलाया। उस केस का कोई मीनिंग देयर इज नो एक्शन बीइंग टेकन। Second incident is of course Nuna incident, and these are the few incidents which actually come to limelight, but there are n number of incidents. As a human rights activist, I could narrate you about 70 incidents of this kind, the cow related incidents that actually unleash unspeakable atrocities on Dalits. So these things are quite rampant. So, एक तरफ बाबा साहब को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, दूसरी तरफ दलित पे एट्रोसिटीज निरंतर जारी हैं। और जैसे ये रोहित वेमुला का मामला या ऊना का मामला, उसमें क्लियरली मतलब उनकी शमूलियत भी नजर आ रही है, संघी फैमिली की। उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है, तो दलित लीडरशिप जो है वो कितनी ऑनेस्ट है इस मामले में, और मतलब डिटरमिन्ड तरीके से इस चैलेंज को ले रही है, या इसको असर्ट कर रही है इसके खिलाफ, या रेजिस्ट कर रही है इसको? Actually, bankruptcy of Dalit leadership basically is causing this problem. दलित लीडरशिप, दलितों का जो आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स है वो करीबन 60s के दशक तक ठीक ठाक अप्रोक्सीमेटली चला। उसके बाद में दलित लीडरशिप बिकेम एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिस्ट। तो जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनमें से जो कुछ भी मिलता है, दे हैव बीन ब्रोकरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दलित बेसिकली, बिकॉज दलित मूवमेंट में दलितों के जो मटेरियल इश्यूज है उसको कभी भी नहीं लिया गया। और आप अगर हिस्ट्री में जाना चाहे थोड़ा सा, तो बाबा साहब ने अपने जीवन में ही ये रियलाइज किया था कि उन्होंने जो भी कुछ भी किया, बिकॉज he hampered on something like a representation logic कि दलितों में से कुछ पढ़े लिख कर अपने ब्यूरोक्रेटिक नोड को मैन करें तो स्टेट का कुछ कैरेक्टर सॉफ्टन कर सकते हैं दलितों के प्रति, या उनके लिए हालात थोड़े ये कर सकते थे। बाबा साहब का ये रवैया रहा, तो उन्होंने इसी पे उनकी काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा चला गया। और बाबा साहब जब 1953 में या 51 में जब वो कैबिनेट से बाहर रिजाइन करके आए, और उनका एक जो फ्रस्ट्रेशन का दौर था 1953 में, उन्होंने अपने ही एक्चुअली स्पोक आउट हिज फ्रस्ट्रेशन सेइंग दैट व्हाटएवर आई हैव डन only benefited a small section of educated Dalit in urban areas, but I could not do anything for my vast masses of people in rural areas, and had asked his unit, the SF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक मराठवाड़ा का यूनिट उनको मिलने गया था दिल्ली में, तो उन्होंने उनको कहा था कि कैन यू फेलोज डू समथिंग लाइक फॉर लैंड फॉर द पीपल। एंड उनके इस प्रॉम्प्ट की वजह से 1953 में पहला लैंड का सत्याग्रह मराठवाड़ा में हुआ, जबकि 1700 people were actually got themselves imprisoned and all. Then 59 में
बाबा साहब जाने के बाद 59 में एक उसी तरह का सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट हुआ दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में खानदेश और मराठवाड़ा रीजन में, और 64-65 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह बना था। तो ये सिवा इन लोग जो मटेरियल डिमांड पे जो लड़ाई, ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसके बावजूद दलितों में कोई भी मटेरियल इश्यूज को लेकर संघर्ष नहीं हुए। तो इसकी वजह से, और इसी वजह से जो 64-65 की बात मैंने की, इसी वजह से रूलिंग क्लासेस ने भी उसका एक स्केयर ले लिया था, और दलितों में भी इसके जो रिफ्लेक्शंस थे कि दलितों जो कुछ अपॉर्चुनिस्ट दलित एलिमेंट्स थे लीडरशिप में, उन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल की बातें करते हैं, लैंड की बातें वगैरह करती है, तो कम्युनिस्ट करते हैं। तो ये जो दादा साहब गायकवाड़ वगैरह है, ये एक्चुअली कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में गए हैं, और कम्युनिस्ट एक्चुअली बाबा साहब कम्युनिस्टों के खिलाफ रहे हैं, तो इसलिए ये अम्बेडकराइट नहीं है। और इस तरह से उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को तबाह कर दिया। बाद में दलित पैंथर उभर कर आई, उसी में भी वही सुर था कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं, इनसे ये होना चाहिए, बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म का रास्ता दिया है। इस तरह से लेकर सारा दलित मूवमेंट को स्प्लिंटर किया गया। तो ये जो स्प्लिंटरिंग रहा है, एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी एलिमेंट ने किया, और इन अपॉर्चुनिटी एलिमेंट को ही इसे काफी वो दोहराते रहे कि दलित मूवमेंट को किसी भी तरह ऐसे अपने एब्स्ट्रैक्ट बातों पे उलझाते रहो, अपने मटेरियल इश्यू की बात मत करो। तो इस तरह बाबा साहब, इट एक्चुअली रिड्यूस्ड डाउन टू जस्ट shouting Ambedkar ki jai in a louder voice. Whosoever shouts it louder, he is the biggest Ambedkarite around. So बस वही वो symbolic तरह से वो करते रहे। तो it actually comes to that whichever party shouts Ambedkar की जय जोरों से, that becomes an Ambedkarite party. So बीजेपी ने उसी को दोहरा के, उसी को एक्चुअली पकड़कर सारे दलितों को, अपने दलित लीडर्स को अपने खेमे में ले लिया है। तो आज today hardly there is any Dalit leader around. अम्बेडकर का जो पोता है प्रकाश अम्बेडकर वगैरह, तो वो एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ थिंग, कि वो लोग आसानी से नहीं जा पाए कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ। तो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ डूइंग समथिंग इंडिपेंडेंटली इन एन इलेक्टोरल फ्रेमवर्क एटसेट्रा, along with the third, and trying to create a third force etc. But otherwise there is hardly any move that can be seen among Dalits. आरपीआई खास तौर पे बाबा साहब की अपनी पार्टी, उनके लीडर खुल्लम खुल्ला तौर पे बीजेपी के साथ जा बैठे हैं। ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है अम्बेडकराइट का झंडा उठाने वालों के ऊपर, जो झंडा बुलंद करने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? यही बात मैंने कही है कि जो ये झंडा बरदार लोग हैं आरपीआई के, तो आरपीआई कोई एक नहीं है। आरपीआई शुरू से ही उसमें सारे स्प्लिंटर ग्रुप बने हैं, और उसका जो बेसिक स्टांस रहा है सारे ही फैक्शन का, वो अपॉर्चुनिस्टिक रहा है। दे हैव बीन एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर एंड doing the biddings for the mainstream parties. That has been the case. Now, it is not a newer phenomenon. When Congress was in power, also they were directly, indirectly in under their sort of hold and working for them. So that has been the history of RPI. बाबा साहब ने इमेजिन किया था कि आरपीआई की संकल्पना अम्बेडकर की ये थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी रहे, नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कैपिटलिस्ट, इस तरह की कल्पना की थी और उन्होंने लिखा था। लेकिन आरपीआई की फॉर्मेशन उनके देहांत के बाद हुई। 1957 में आरपीआई फॉर्मलाइज हुआ था, एंड बाद में थोड़ी देर तक वो ठीक चला, और उसके बाद में उसकी पूरी हिस्ट्री इसी तरह की रही है। तो ये लोग not only that initially they used to argue like okay, बाबा साहब अम्बेडकर भी तो क्या नेहरू के कैबिनेट में गए हैं, और हम अकेले क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी पावरफुल पार्टी के साथ रह के ही हमने
जो उद्देश्य है उसको हासिल कर पाते हैं। इस तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे थे लोग। अभी भी लोग इसी तरह का कवर अप करेंगे कि ओके हम लोग हिंदुत्व के साथ नहीं है वो, लेकिन जो दूसरी पॉलिसीज है बीजेपी की हम उसके साथ है। तो हजार रास्ते हैं जिसको कि दलितों को उनके अपने अपने स्टांस को पहचान कर उनको गुमराह कर सकते हैं। तो ये उनका रवैया रहा है। तिलतुमड़े जी, अभी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं उसको, आयरनी भी कह सकते हैं, उसके कई तरीके से हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। एक सबब है ये वाला कि 6 दिसंबर को जब बाबा साहब की बरसी के मौके पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया 1952 में, तो ये हमें बताएं कि जो कॉन्ट्राडिक्शन भी है, जो आयरनी भी है, जो एक कोइंसिडेंस है, इसके पॉलिटिकल मीनिंग क्या है आपके लिए, क्या कन्वे करना चाहेंगे आप? एक बात ठीक से नहीं बोली जा पाएगी, लेकिन उनका कुछ प्लान था कि 6 दिसंबर जो कि एक दिन मनाया जाता है दलितों में। अगर आप बॉम्बे का परिसर लें तो बॉम्बे में जहाँ पे एक चैत्य भूमि है जहाँ पे उनको क्रिमेट किया गया था, और वहाँ पे जो कॉन्ग्रीगेशन होता है उस मेरे ख्याल से वो हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। करीबन 2 मिलियन पीपल, अभी हाल की फिगर्स है कि मोर देन 2 मिलियन पीपल एक्चुअली कॉन्ग्रीगेट देयर every year, and this is actually increasing like anything. With every passing year the संख्या बढ़ती है। तो ये जो माहौल है, और 6 दिसंबर में बहुत सारी जगह है जो कि इस तरह के कॉन्ग्रीगेशन बनते रहे हैं, तो इसको कुछ तो भी एक एंटीडोट की तरह इस्तेमाल करके उसको डाइवर्ट किया जाए या उसको सप्रेस किया जाए, ये एक उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। ये तो इनोसेंट बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए सिर्फ 6 दिसंबर ही डेट तय करना। तो बट इसका कुछ इससे ज़्यादा ठोस कोई सबूत नहीं है या कुछ कहा नहीं जा पाता। तो 6 दिसंबर उन्होंने इसीलिए चुना होगा कि जो दलितों का जो फोकस है उसको थोड़ा एटलीस्ट डिफ्यूज किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, बिकॉज ये जो 6 बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा देने के बाद में वो बहुत सारे जो दलित है, बहुत सारे बैकवर्ड्स है जिन्होंने उसमें पार्ट लिया था, उसको एनिवर्सरी मनाएंगे। वो सारी उनकी प्लान्स कोई फ्रक्टिफाई होती नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बाबरी मस्जिद इसे हिंदुओं ने रियली उसको सेलिब्रेट किया हो, या वो डॉर्मेंट रहा है। उल्टा उसको बूमरैंग ज़्यादा हुआ है। लोगों ने, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको कंडेम नहीं किया है, और जो एनिवर्सरी मनाई जाती है ना कि सेलिब्रेशन की, लाइक या नहीं, रादर the more of a condemnation they actually incur on that particular day. So this has been happening. So it has not been that kind of political success as they might have planned. It's just a surmise. So beyond that probably nothing much can be said. Certainly. तिलतुमड़े जी, सर मैं एक या दो सवाल आपसे पूछूंगा। बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं कि जैसे 6 दिसंबर का ही एग्जाम्पल अगर लेकर बात करें, अभी गुजरात फाइल्स नाम की किताब सामने आई है, उसमें ये बात का खुलासा किया गया कि कैसे जो खास तौर पर जो दलित बैकग्राउंड वाले पुलिस ऑफिसर हैं उनको ही यूज किया गया मुस्लिम्स के स्टेज एनकाउंटर बनाने के लिए। इसी तरह से जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हुई उसमें भी दलित को फुट सोल्जर्स के तौर पर यूज किया गया। ये जो एक प्रोसेस चलता आ रहा है कि दलित को, जो खुद ऑप्रेस कम्युनिटी है, उसको यूज करके किया जा रहा है दूसरी कम्युनिटीज को टेरराइज करने के लिए, माइनॉरिटीज को टेरराइज करने के लिए, ये क्या उसी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है कि उसमें दलित को साथ में लेके उसको और ब्रॉडनेस बनाया जाए, वो प्रोसेस है, या दो माइनॉरिटीज को आपस में लड़ाकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जारी रखने का मंसूबा है? व्हाट आर द डिजाइन बेसिकली? No, they would like to pitch Dalit against Muslim. They have been planning like that, and that is their dream rather. कि because उनकी फूड सोल्जरी करेगा क्यों? कौन? यही निचला तबका करेगा, और कौन करेगा? बिकॉज जब लड़ाई की बात आती है रास्तों में, तो यही निचला तबका अवेलेबल है जो उनकी फूड सोल्जरी करा सकता है। बिकॉज अदरवाइज दे आर क्वाइट एंस्कॉन्स, दे आर अपर कास्ट, दे आर
economically well settled and all those things. Though those people cannot be expected to do all these kinds of things. So like the backward caste उनके जेब में है. आदिवासी उन्होंने काफ़ी हिंदुआइज कर दिया है, और जहाँ जहाँ भी जो पेरिफेरल एरियाज है सिटीज़ की, अर्बन सेंटर्स की, उसको आदिवासी मोबिलाइज कर देते हैं. तो ये तो उनका ये तो फूड सोल्जर बन ही जाते हैं. अहमदाबाद में एक खासियत हो गई थी, और प्रॉब्ली आई माइट बी द बिगेस्ट कल्प्रिट हु हैज रिटन the first time that there was participation of Dalits in actually the riots. That was confined to Ahmedabad city, and these riots were actually widespread. Elsewhere it was not. Actually Dalit have saved Muslims families. So वो बातें उजागर नहीं है, because मीडिया को सेंसेशनलाइज चीज़ें पसंद है. और जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था और जिसका स्ट्रेस था, I lamented the participation of Dalits in Gujarat riots. So उन्होंने ज़्यादा, multiple people actually uplifted that kind of thing, and it became a widespread thing affair that Dalit participated in big way, which was not the truth. Maybe ये पैटर्न रहा है, जैसे 84 में भी हुआ था, पैटर्न रहा है कि कोई भी ऐसा काम हो आप करवा लें एक ऐसी कम्युनिटी से जो ऑप्रेस्ड है, जो पुअर है, और बाद में उसको डिमोनाइज करना भी आसान हो जाता है कि ये लोग इन्होंने काम किया, ये जो रहते हैं झुग्गियों में, so अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं. Exactly, I said that, and that has been their dream. Actually, Dalit is not an homogeneous thing, but उसके दो actually clear divide देखा जा सकता है. एक Ambedkarite Dalit and non-Ambedkarite Dalit. The Ambedkar was followed by the majority caste among Dalit in every province. They can be defined as Ambedkarite Dalit, and rest of the thing they did not follow Ambedkar. आज के ज़माने में क्या है कि काफ़ी सारे लोग अभी उन्होंने रियलाइज किया है अम्बेडकर एज एन आइकॉन, एंड इंक्रीजिंगली देयर इज अ ट्रेंड टू गो टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज द opportunity for BJP to iconize Ambedkar in a bigger way. But this has been the phenomenon. They have always been pitching something like a backward caste with Dalits etc. against Muslims. So that has happened. As regards Dalit officers etc. की बात आती है, तो ये एक बड़ा अजीब सा डायनामिक्स है कि दलित ऑफिसर जो होते हैं तो उनका अपना एक इनसिक्योरिटी सी होती है. उनको ज़्यादातर एक्चुअली जो जिम्मेदारी के पद पर होते हैं दलित ऑफिसर, तो उनको एक एंजाइटी होती है कि उनको अपने आप को अबाउ बोर्ड प्रूव करे. दे हैव टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर टू प्रूव देमसेल्व्स काइंड ऑफ थिंग. And even otherwise they are the more pliable kinds of people, you know, who could be used. So ये बात सोचने की बात है. इस परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा ये सोचने की बात है कि जो बाबा साहब का लॉजिक था कि रिप्रेजेंटेशन दलित कुछ लोग एलिमेंट्स अगर सामने आ जाए तो ये दलितों के जो मासेस है दलितों के, उनको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके बारे में एक सवाल निर्माण होता है. जैसे दलितों के जो बड़ी बड़ी एट्रोसिटीज है, मैंने खैरलांजी एक महाराष्ट्र में बड़ी एट्रोसिटी हो गई थी और उसके 2006 में, और उसमें मैंने एक किताब लिखी. अगर आप जानेंगे कि why I wrote it, because that was very actually illustrating in very exemplary way the dynamics of the various forces. That everybody was a Dalit officer. The entire state machinery, a piece of state machinery around Khairlanji incident was manned by Dalit, and till Khairlanji happened. Not only Khairlanji happened, after that, after post Khairlanji, those events actually took place were quite illustrative, because कोई भी everybody almost was a Dalit officer, and still they played a very villain role in the episode. So वो प्रूव करता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक है, it doesn't work that way as it was imagined simplistically. फाइनल क्वेश्चन तेतुमरे जी के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एट्रीब्यूट किया जाता है बाबा साहब को, वो एक अलग बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना एट्रीब्यूट किया जा सकता, कितना नहीं किया जा सकता. खुद अम्बेडकर साहब ने भी इतराज जाहिर की और एक लास्ट में प्रोसेस भी कहा था कि मैं खुद भी उसको जलाने के लिए तैयार हूँ. बिल्कुल, वो एक अलग बात है. लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी स्थिति में है, चाहे उसकी अपनी लिमिटेशन है नहीं है, वो भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं. कितनी देर लगेगी इस सरकार को उसको चेंज करके ऑफिशियली इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? क्योंकि ये जो बात हम सुनते आ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि अभी कोई दिक्कत है या अभी कुछ बड़ा होने वाला है? व्हाट आर योर थॉट्स?
as I imagine, the way of Hindu Rashtra comes through constitution. Now उन्होंने ठान ली है कि और कोई दूसरा चारा नहीं है, electoral path is the path, and that is actually being shown variously, you know, जैसे कि appropriation of Dalits and all these things are actually driving that way. They want few something like an incremental vote, because last time उन्होंने clear majority पाली है, ये एक unprecedented victory है उनके लिए, और उन्हीं इसी वजह से उनके हौसले बढ़े. लेकिन अगर वोट का परसेंटेज देखा जाए तो जस्ट 31% वोट, दे आर स्टिल अवे फ्रॉम दैट. But what happens in the first past the post election kind of system that India has, a small amount of incremental votes also could catapult them to very big numbers in the parliament, right? But 2/3 majority, etc., which is required for changing the constitution, probably is a light years away. That may not be seen. The game plan is such that they in 2019 election they बहुत जोर शोर से उन्होंने अपना ये ड्राइव कर लिया है, अपना मन की ब्रिगेड अनलिश किया है, ताकि हिंदुओं का पोलराइजेशन और शार्पर हो. और उनको 2-4%, 5% भी हिंदू वोट 31 goes up to say 36, 40, etc., which is a dream number for them. अगर वो बन जाता है तो उनको काफ़ी हद तक उनकी मेजॉरिटी आ जाएगी. लोकसभा में इस बार तो थी, लेकिन उसके नंबर्स चाहिए होते हैं 2/3 के आसपास में. एंड राज्यसभा इस टर्म में उन्होंने राज्यसभा वाज एक्चुअली हर्डल फॉर देम बिकॉज दे डिड नॉट हैव नंबर्स, सो दे कुड नॉट थिंक ऑफ. नो 2019 जो उन्होंने इस फेज में नहीं कर पाए, उसमें अगर नंबर्स बन जाते हैं राज्यसभा में वो बना पाएंगे, बिकॉज इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन स्टेट्स एटसेट्रा दे हैव बीन विनिंग एंड दे वुड गेट दोज नंबर्स. एंड लोकसभा में अगर वो इवन इससे थोड़ा सा बढ़ोतरी पा जाते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट मैनेजिंग द रीजनल पार्टीज. सो इट बिकम्स वेरी वेरी sort of touchable kind of game, and they're aiming at 2019 to accomplish this miracle. So what they would, in my assessment, what they would do, and nobody has been speaking like that, but firstly they would actually change the constitution to have a presidential form, because all that Ein Walk, Ein Führer, Ein Reich, वो हिटलर की जो थी, उन्हीं का भी अपना एक स्लोगन है उसी तरह का. They have been actually dreaming India in that manner. It's a fascist state, etc. What they have been operating is not less than fascism. Actually, Mussolini also might be shamed by what is happening in India today. But they want to formally convert it that way, so that structurally India becomes that way. So once they have a unitary control over the regime, then they can accomplish minor things, etc. And there could be, at that point in time, declaring something like a Hindu Rashtra and all that kind of thing, then all the hurdles, all the democratic factors, etc., could be discarded, and whatever they want, that can be then accomplished. Like जो लोग उनका सहमत नहीं है, उनको eliminate करना, all those kinds of things. In minor way, it has been happening in India. You do know that they have eliminated many people. But that is, today they stand as a symbolic. Okay, just Dabholkar या पानसरे या कलबुर्गी या XYZ, इनको मारना, उन लोगों में कुछ ये नहीं था कि वो लोग डेंजर थे वगैरह वगैरह, but they stood for something by which the other vast numbers, etc., could be terrorized. But tomorrow what would happen is that all these people could be summarily eliminated. This is the portent that can be seen very clearly. Right. तेज मुंडे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ. फिर कभी मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. मेहरबानी.